learners, welcome back to the channel with the new chapter of class 4th computer, that is chapter number 8 about Scratch 3. So now let's start the chapter and learn about it. First of all, we have the topic adding a new spread from library. Students, as we all know that in Scratch, cat is the default spread, right? Scratch में जो Scratch projects हम बनाते हैं उसमें default spread आपका कौन होता है? cat होती है. बट इफ यू वांट तो आप इसके अंदर एक न्यू स्प्रिट इंसर्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली देयर आर 4 न्यू स्प्रिट बटन्स हैं स्प्रिट ऐड करने के लिए. दैट इज नंबर 1, चूज अ स्प्रिट, यानी कि इस ऑप्शन का यूज करके आप कोई भी एक स्क्रैच बिल्ट इन लाइब्रेरी में से न्यू स्प्रिट को पिक कर सकते हैं. सेकेंडली पेंट, सो इस ऑप्शन के थ्रू आप एक न्यू स्प्रिट ड्रॉ कर सकते हैं. थर्ड सरप्राइज ऑप्शन से हम कोई भी न्यू स्प्रिट को लाइब्रेरी से रैंडमली ऐड कर सकते हैं. एंड फोर्थ इज अपलोड स्प्रिट. सो अपलोड स्प्रिट ऑप्शन का यूज करके आप एक इमेज को अपलोड कर सकते हैं विच यू ऑलरेडी हैव, राइट. सो नाउ टू ऐड अ न्यू स्प्रिट, अब एक न्यू स्प्रिट ऐड करने के लिए यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. नंबर 1, क्लिक ऑन द चूज अ स्प्रिट बटन. सबसे पहले आप चूज अ स्प्रिट बटन पे क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट एक विंडो अपीयर होगी जिसके अंदर वेराइटी ऑफ स्प्रिट्स होंगे. सो इन वेराइटी ऑफ स्प्रिट में से आप कोई भी एक स्प्रिट को सेलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बीटल सेलेक्ट कर लिया, राइट. तो वो स्प्रिट अब आपका इस तरीके से स्क्रीन पर अपीयर होगा. ओके, नाउ डिलीट द एग्जिस्टिंग स्प्रिट. व्हाट दिस थिंग, अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्प्रिट था आप उसको डिलीट करोगे या फिर जो डिफॉल्ट स्प्रिट है उसे डिलीट करेंगे. एंड उसे डिलीट करने के लिए आपको पहले उस डिफॉल्ट स्प्रिट को स्प्रिट लिस्ट में जाकर सेलेक्ट करना है एंड देन उस आइकन पे क्लिक करना है जो कि स्प्रिट के टॉप राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक चेंजिंग द अपीयरेंस. स्टूडेंट्स, अब हम एक स्प्रिट की अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हैं. सी, if you want to you can change the appearance of a sprite by changing its costume. How we can change this appearance? By changing its costume. Basically sprite के costume को change करके we can change this appearance. So the looks category in the block menu has instructions to change the appearance of the sprite. So basically Scratch project में there is a look category in the block menu and it has instructions present in that by the views of which you can change the appearance of the sprite. All right. You can see the different costumes for your sprite by clicking the costume tab. So for that they have given the steps which needs to be followed. Number 1, that is delete the existing sprite and add a new sprite, say dragon. सबसे पहले जो existing default sprite था we will delete it and then we will add a new sprite. For example, we have taken dragon over here. All right. After that you have to click on the costume tab. The second step is what? To click on the costume tab. And then third, notice the different costumes under the costume list. So when you will click on the costume tab, you will see that there are variety and the different types of costumes which are present under the costume list. And उस list में से you can select any of the costume over here. ठीक है, and then आप उसको edit कर सकते हैं different tools का use करके which are available in the window only. Now you have to select the code tab. इसके बाद code tab select करना है and then you have to create the following script for the sprite which they have given you. After that, after creating the script, click on the green flag button. ठीक है, script को create करने के बाद simply green flag button पे हमें click करना है. Now they have given you the usage of the following blocks which you have used in the above coding. Number 1, we have used this change color effort by this number. So इसका use किया जाता है for what purpose? स्प्रिट के कलर को चेंज करने के लिए एक स्पेसिफाइड नंबर से. सो आप इस ब्लॉक को ड्रैग करेंगे सिंपली फ्रॉम द लुक्स कैटेगरी. सेकेंड, वी हैव दिस ब्लॉक. आने ब्लॉक क्या करता है? स्प्रिट के कॉस्ट्यूम को चेंज कर देता है नेक्स्ट कॉस्ट्यूम से विच इज प्रेजेंट इन द कॉस्ट्यूम पे. एंड जो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ब्लॉक होता है वो भी अगेन लुक्स कैटेगरी में ही अवेलेबल है. थर्ड, वी हैव दिस ब्लॉक एंड ये ब्लॉक आपके स्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा जब आप ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करोगे. एंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द इवेंट्स ब्लॉक. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज एडिंग अ न्यू बैकड्रॉप. सो एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस आल्सो दैट लाइक अ स्प्रिट, एक स्प्रिट की तरह आप अपने स्टेज के बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग बैकड्रॉप बटन्स. ऑलराइट. सो बैकड्रॉप बटन्स में बैकड्रॉप आइकन्स होते हैं एंड बैकड्रॉप आइकन्स का यूज किया जाता है स्टेज बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए. सो स्क्रैच हमें 4 डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है स्टेज के बैकड्रॉप को चेंज करने के लिए. नंबर 1, वी हैव चूज अ बैकड्रॉप. सो इस ऑप्शन के थ्रू आप एक बैकड्रॉप चूज कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच लाइब्रेरी ओनली.
सेकेंड वी हैव पेंट. सो पेंट ऑप्शन का यूज करके एक न्यू बैकड्रॉप आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट्स. एंड ये आपके लिए बैकड्रॉप विंडोज एडिटर को भी ओपन करता है. नेक्स्ट सरप्राइज. सरप्राइज ऑप्शन से आप कोई भी न्यू बैकड्रॉप को लाइब्रेरी से रैंडमली ऐड कर सकते हैं. एंड अपलोड अ बैकड्रॉप के थ्रू आप एक रिक्वायर्ड फाइल को अपलोड कर सकते हैं फॉर द बैकड्रॉप. नाउ टू डू सो वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. नंबर 1, आप सबसे पहले क्लिक करेंगे चूज अ बैकड्रॉप बटन पे. देन एक विंडो अपीयर होगी जिसके अंदर वेरियस बैकड्रॉप्स होंगे. वहां से आप कोई भी एक बैकड्रॉप अपने खुद की चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने चूज किया बास्केटबॉल 1. ऑलराइट, एंड देन वो सेलेक्टेड बैकड्रॉप आपका एज अ बैकग्राउंड सेट हो जाएगा फॉर द स्टेज. ठीक है. नाउ मेकिंग अ स्प्रिट से समथिंग. सो स्टूडेंट्स, एक स्प्रिट आपके लिए वर्ड और सेंटेंस जो है बोल सकता है स्क्रैच प्रोजेक्ट में. सो यू कैन मेक योर स्प्रिट स्पीक लाइक अ कैरेक्टर इन अ कॉमिक स्ट्रिप. ऑलराइट, सो लेट अस मेक अ प्रोजेक्ट ऑन इट. सबसे पहले आप लुक्स ब्लॉक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे इन द ब्लॉक्स मेन्यू. देन आपको क्लिक करना है, ड्रैग करना है दिस ब्लॉक फ्रॉम द स्क्रिप्ट एरिया. अगेन क्लिक करेंगे कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी में विच इज इन द ब्लॉक्स मेन्यू ओनली. एंड वहां से आपको इस ब्लॉक को click and drag करना है on the script area. Then you will again click on the looks block category in the blocks menu and again you will drag this block now, ठीक है, on the script area. फिर आपको इसके अंदर मैसेज टाइप करना है how are you inside this block. फिर अगेन ये वाला ब्लॉक आपको सिलेक्ट करना है एंड ड्रैग करना on the script area. फिर इसके अंदर मैसेज टाइप किया जाएगा I am fine inside this block. And then आप किसी भी ब्लॉक पे अगेन क्लिक कर सकते हैं to run the block stack. All right, chalo. So see, first block which we have used in this project was say hello. So ये block आप use करते हैं speech bubble में words को बोलने के लिए. Then wait 1 second. ये block का use किया गया था spirit को wait करवाने के लिए, ठीक है, एक specified number of second के लिए before moving to the next block of the script. Then again say hello for 2 seconds. इस block का use किया गया था spirit को क्या करने के लिए, to say something एक specified number of seconds के लिए. All right. Now how to make duplicate copy. अब स्प्रिट की डुप्लीकेट कॉपी कैसे बनाई जाती है स्टूडेंट्स? तो उसके लिए आपको सबसे पहले पेन ब्लॉक कैटेगरी में क्लिक करना है इन द ब्लॉक्स मेन्यू. एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक एंड ड्रैग दिस स्टैम्प ब्लॉक ऑन द स्क्रिप्ट एरिया. ठीक है. फिर अगेन क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे पेन नाउन ब्लॉक को एंड दिस ब्लॉक एंड ऑल्सो दीज 3 ब्लॉक्स आपको फिर क्लिक एंड ड्रैग करने हैं स्क्रिप्ट एरिया में. एंड देन पेन के साइज को आप सेट करेंगे फ्रॉम 1 to 10. आफ्टर देन मोशन ब्लॉक कैटेगरी पे क्लिक किया जाएगा इन द ब्लॉक्स मेन्यू. एंड देन अगेन यू विल क्लिक एंड ड्रैग दिस मूव 10 स्टेप्स ऑन द स्क्रिप्ट एरिया. ये वाले ब्लॉक को आप क्लिक एंड ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया पे लेके जाएंगे एंड इसमें जो स्टेप वैल्यू है उसको आप चेंज करेंगे फ्रॉम 1 to 50. After that again click and drag this block from the script area and then किसी भी ब्लॉक पे अगेन स्क्रिप्ट एरिया के अंदर इतने सारे ब्लॉक्स आपने स्टैक किए हैं उसमें से कोई भी आप ब्लॉक पे आपको क्लिक करना है एंड देन द ब्लॉक स्टैक विल स्टार्ट रनिंग. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक रिपीटिंग एक्शन. सो स्टूडेंट्स दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक क्या है? ये रिपीट ब्लॉक है कंट्रोल कैटेगरी ऑफ द ब्लॉक मेन्यू का, जिससे एक स्प्रिट के एक्शंस को रिपीट किया जाता है एज मेनी टाइम्स एज नीडेड. सो ये ब्लॉक क्या करेगा? ब्लॉक्स को रन करता है. ठीक है, जितने भी ब्लॉक्स इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर होते हैं ये ब्लॉक उन्हें रन करता है एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक. एंड रिपीट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं. सो लेट अस मेक अ प्रोजेक्ट ऑन इट. सो सबसे पहले कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी पे क्लिक किया जाएगा इन द ब्लॉक्स मेन्यू एंड देन यू विल क्लिक एंड ड्रैग दिस ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया. फिर अगेन पेन कंट्रोल कैटेगरी पे क्लिक करना है इन द ब्लॉक्स मेन्यू एंड वहां से ये 3 ब्लॉक्स को क्लिक एंड ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया पर लेकर आना है. पेन के साइज को चेंज करना है फ्रॉम 1 to 10. आफ्टर दैट अगेन मोशन कंट्रोल कैटेगरी पे आप क्लिक करोगे इन द ब्लॉक्स मेन्यू एंड देन वहां पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे दीज 2 मूव 10 स्टेप्स एंड टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्रीज. ये 2 ब्लॉक्स को स्क्रिप्ट एरिया पे क्लिक करके ड्रैग करना है. एंड देन अगेन यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू है इसे आप चेंज करेंगे फ्रॉम 1 to 30 एंड ये वाली जो वैल्यू है इसे टर्न करेंगे फ्रॉम 15 to 10. एंड देन क्लिक ऑन एनी ब्लॉक टू रन अ ब्लॉक स्टैक. ऑलराइट, चलो नाउ अगेन सी, ये जो ब्लॉक है स्टूडेंट इवेंट्स कैटेगरी का, ये काफी यूजफुल है. ठीक है, यानी कि ये ब्लॉक जब एक ब्लॉक स्टैक के टॉप पे होता है
तो जो एक्शंस है ब्लॉक के वो एग्जीक्यूट होंगे जब ग्रीन फ्लैग जो कि आपके टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज पे प्रेजेंट होता है उस पर क्लिक किया जाएगा। एंड देन अगेन दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक कंट्रोल कैटेगरी का ब्लॉक्स को, जितने भी ब्लॉक्स इसके अंदर प्लेस्ड है उन सबको रन करता है ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, जब तक स्टॉप बटन जो कि अगेन स्टेज के टॉप राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, जब तक आप स्टॉप बटन को क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो ओवर अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एडिंग साउंड। स्टूडेंट्स, साउंड ब्लॉक के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्प्रिट को बोलने के लिए, म्यूजिकल नोट्स ऐड करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी पर्पसेस के लिए आप इसका यूज करते हैं। सो लेट अस मेक अ प्रोजेक्ट ऑन इट ऑल्सो। सो अगेन कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी पे क्लिक करना है इन द ब्लॉक्स मेन्यू, देन क्लिक एंड ड्रैग करना है दिस ब्लॉक ऑन द स्क्रिप्ट एरिया, फिर लुक्स ब्लॉक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे इन द ब्लॉक्स मेन्यू ओनली, एंड वहां से आपको ये दो ब्लॉक्स को, ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग करना ऑन द स्क्रिप्ट एरिया। आफ्टर दैट मोशन ब्लॉक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे इन द ब्लॉक्स मेन्यू, देन अगेन मूव 25 स्टेप्स वाले ब्लॉक को क्लिक एंड ड्रैग करना ऑन द स्क्रिप्ट एरिया। आफ्टर दैट साउंड ब्लॉक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे इन द ब्लॉक्स मेन्यू, एंड वहां से आपको ये स्टार्ट साउंड म्याऊ ये ब्लॉक को क्लिक एंड ड्रैग करना है ऑन द स्क्रिप्ट एरिया। फिर कंट्रोल क्लॉक ब्लॉक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे एंड देन वेट 1 सेकेंड ब्लॉक को ड्रैग करना है स्क्रिप्ट एरिया पे, फिर अगेन साउंड ब्लॉक कैटेगरी पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक एंड ड्रैग दिस, ठीक है, ब्लॉक ऑन द स्क्रिप्ट एरिया। फिर अगेन आपको कोई भी ब्लॉक पे आप क्लिक कर सकते हो टू रन द ब्लॉक स्टैक्स। नाउ द साउंड ब्लॉक्स जो आपने इस प्रोजेक्ट में यूज किए, नंबर 1 दिस स्टार्ट साउंड म्याऊ। सो ये ब्लॉक क्या करेगा, एक स्पेसिफाइड साउंड को प्ले करेगा एंड कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट ब्लॉक पे इमीडिएटली। एंड देन दिस वन, ठीक है, प्ले साउंड म्याऊ अंटिल डन, ये वाला हमने एक और ब्लॉक यूज किया था इस प्रोजेक्ट में। सो ये ब्लॉक एक ड्रम साउंड प्ले करता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बीट्स तक। फिर ड्रम टाइप पे क्लिक करेगा बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन एरो विच इज नेक्स्ट टू द नंबर, एंड वो नंबर ऑफ बीट्स पे भी आपके क्या क्लिक किया जाएगा बाय चेंजिंग द वैल्यू इन द box. All right, that's all for the chapter. It's completed and I hope that you must have understood the chapter carefully. Let's meet in the next session very soon, and take care of yourself, keep learning very well, and thanks to everyone.